Good morning, students. Yesterday we have discussed about the software concept. Further, we are going to elaborate some terms used in system software or application software. System software, all of you know very well. System software are the software which are used to execute our system, just like the operating system. For example, Windows, DOS, Linux, Unix. These are the programs provide the environment for running application program and are designed to control the operation of a computer system. ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं. ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर comprises program which interact with the hardware at the core of the basic level. System software is the interface between the user and hardware. You can say that the interface between user and hardware. जो आप कमांड देते हैं वो हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्ट करेगी ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे. दैट इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर बच्चों. ओके. Different functions of system software are the reading data and receiving information, translating data and instructions, controlling all the peripherals devices, processing and generating output. System software can be further categorized into operating system and language translator. These are the different functions of system software and these are the operating system. ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर. रीडिंग डेटा एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन. रीडिंग डेटा एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर read the data from the users and informations and translate data and instructions. वो डेटा को ट्रांसलेट करता है और इंस्ट्रक्शंस को. कंट्रोलिंग ऑल द पेरिफेरल्स डिवाइसेस. सारी जो डिवाइसेस इसके साथ अटैच होती हैं उसको ये पूरा कंट्रोल करता है. ठीक है. प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग आउटपुट. प्रोसेस करता है जो आपकी इनपुट आई है और उसके बेस पे आपको आउटपुट ये देता है. नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ वेरी important or common because all of us use the various application softwares in our laptop or mobile. In today एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपका डिज़ाइन होता है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए. जैसे अकाउंटिंग के लिए आपका टैली का सॉफ्टवेयर हो गया, एक्सेल हो गया आपका मार्कशीट डिज़ाइन करने के लिए या कैलकुलेटिंग जो भी आपके वर्क है उसके लिए. और these are the various application software used in system or mobile. Application software are classified into two types. ये दो टाइप के होते हैं, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सम ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेड फ्रॉम द कॉमन यूजर्स फॉर डे टू डे applications. Use is also called refer to the office tool. The users may use them in the manner they want. For example, word processing, database management system, integrated development environment. ये जनरल पर्पज़ है जो कि आपका जनरली हम सब लोग यूज़ करते हैं. स्पेसिफिक पर्पज़ जो एक पर्टिकुलर यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका डिज़ाइन किया गया होगा वो आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. ठीक है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर दोज एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट assets the computers performing housekeeping functions like scanning, data backup, removing virus. These are the utility software. Utility software basically those software which are used to improve your computer performance. जो आपकी कंप्यूटर परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करते हैं वो सब आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है. जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, विनजिप सॉफ्टवेयर हो गया, डाटा बैकअप हो गया, स्कैनिंग हो गई. दीज आर द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस है. डिस्क फ्रेगमेंटर. डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है? दिस यूटिलिटी हैव टू रीअरेंज फाइल्स एंड अनयूज स्पेस ऑन द हार्ड. क्या होता है कि हमारी हार्ड डिस्क में जो अनयूज स्पेस होता है उसको डिस्क फ्रेगमेंट करते हैं. डेट मीन्स उसको हम एलोकेट करते हैं फॉर स्टोरिंग आवर वैल्यूज़.
or data. The memory is used to is small chunks randomly. Sometimes when a memory chunk of appropriate size is not available, the operating system breaks the fragment the files, resulting in slower access of a file. A disk fragmenter scan the hard disk and for fragmented files and bring all the fragment together. क्या होता है कि मेमोरी जो है स्कैटर्ड हो जाती है, उसको हम डिस्क फ्रेगमेंट करते हैं. डेट मीन्स एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम अपने डेटा को स्टोर करा सकें. बैकअप यूटिलिटी. This utility helps with taking backup of the data, duplicating the disk information. It creates a copy of the complete partial data stored in a disk, DVD और CD. Backup utility means आप अपना डाटा का बैकअप ले सकते हैं, डुप्लीकेट डाटा डिस्क बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आप उसको फर्दर यूज कर सकें. कंप्रेशन यूटिलिटी. दिस यूटिलिटी हेल्प्स इन कंप्रेशन ऑफ लार्ज फाइल्स. ये विंजी सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो आपके फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. डिस्क क्लीनर. डिस्क क्लीनर जो आपका यूटिलिटी स्कैन द फाइल दैट हैव नॉट बी एक्सेस यूज सिंस लॉन्ग. जो बहुत दिन से आपका यूज़ नहीं हुई है फाइल को डिस्क क्लीनर की हेल्प से हम उसको स्कैन करते हैं, और जो यूज़ नहीं हुआ उसको फिर हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है. डिवाइस ड्राइवर. ए डिवाइस ड्राइवर इज ए प्रोग्राम दैट कंट्रोल ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस. यूज ए पेरिफेरल डिवाइस दैट इज एक्सटर्नली अटैच्ड टू द कंप्यूटर. दीज आर द डिवाइस ड्राइवर फॉर प्रिंटर, स्कैनर, डिस्प्ले, वेब कैमरा. एक प्रोग्राम होता है जो आपके सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर हो गया, उस टाइप के लिए. आजकल सारे ड्राइवर जो है वो इनबिल्ट इंस्टॉल आते हैं. आपको अलग से कोई DVD CVD इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, आप नेट से इसको कर सकते हैं, ठीक है. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम दैट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. ये कॉन्सेप्ट है, आप इसमें देख सकते हैं फिगर 1.4. हार्डवेयर है CPU, RAM, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ये यूज़र है. 3 लेयर्स होते हैं इसके यहाँ पे, 3 इंटरफेस, 3 लेवल्स, यूज़र, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर. तो सॉफ्टवेयर क्या है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये जो इंटरफेस है बिटवीन यूज़र, ये यूज़र है और ये आपका हार्डवेयर है, ओके. Need for operating system. What are the need of operating system? Operating system is an essential component of the system. All of you know very well that without operating system, no system will be executed. Okay, user interface, program execution, resource allocation, manipulation, ये सब operating system के वर्क है. अब क्या इसके आपका क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके फंक्शंस, ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए रिसोर्स मैनेजर, ओके. आप इसको देख सकते हैं. अभी हम इसमें इतना ही रखेंगे, ठीक है. ये हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस